Good morning everyone. I am Ritika and I am BBA first semester. Today I here present my presentation on the topic of administrative management theory. First of all, thanks to our respected Mr. Anil sir to giving me this wonderful opportunity. Now let's see administrative theory. This theory given by Henry Fayol and he was the father of general management as well as modern management. He was the first person to identify the four functions of management: organizing, planning, directing and controlling, and he also drive 14 principle of management. Let's see. Division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, and serve individual interest of general interest, uh, remuneration of employee, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability, personal, initiative, and spirit de corps. Now I am explain one by one. Division of work. Whole uh, whole whole work must be divided into smaller tasks or jobs. Each job must be assigned to a trained specialist. Big firm have separate departments like finance department, HR department, production department, etc. इससे इसका बेनिफिट ये है कि स्पीड गेनिंग हो जाता है एम्प्लॉय का और टास्क इजीली हो जाता है. And now second is authority and responsibility. Authority means बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर इस दोनों में प्रॉपर बैलेंस बना रहता है तो अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में हेल्प होता है. एंड अथॉरिटी इज राइट टू गिव ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट्स. उसका काम होता है ऑर्डर देना. नाउ नेक्स्ट इज Now third is discipline. It is obedience to the rules and regulation of the organization necessary for systematically working of the organization. Discipline is required every level of organization. एंड अगर प्रॉपर डिसिप्लिन में अगर एम्प्लॉय है मैनेजर है तो रिलेशनशिप भी मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में हेल्दी रहता है, वर्क भी स्मूथली होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ करता है, एम्प्लॉय भी ग्रोथ करता है. नाउ नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. Unity of command. Each subordinate should receive orders and be accountable to one and only superior. Means एक बॉस है, अगर बहुत सारा बॉस है तो सबका बात नहीं मानना है, एक का बात मानना है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और उसके ऑर्डर का मिसयूज ना हो. तो दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड. नाउ नेक्स्ट इज unity of direction. There should be one head and one plan for group activity having some objective. एक प्लान होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है और उसमें ग्रुप एक्टिविटी होता है. सबका प्रॉपर अलग अलग काम होता है, अलग अलग स्किल क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसका अलग अलग काम होता है और सब एक ही गोल अचीव करने के लिए एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. उनका एक ही पर्पस होता है, उनको गोल अचीव करना होता है, वो ग्रुप गोल होता है. दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. Subordination of individual interest to general interest. Interest of organization as whole must prevail over the interest of the individual employee. एज एग्जाम्पल अगर समझे तो कोई एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है किसी कंपनी में, अगर उसके घर में फंक्शन है तो वो छुट्टी लेकर फंक्शन में है, लेकिन अगर उसको कंपनी से कॉल आ जा रहा है कि नहीं आपको ड्यूटी पे आना है तो वो अपना फंक्शन छोड़ के उसमें जाता है, उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है. दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. नाउ नेक्स्ट इज remuneration of employee. Overall pay and compensation या reward should be fair to both employee and organization. उसको अच्छी सैलरी दे, मतलब वो जो काम करते हैं उसके बदले उसको सैलरी रिवॉर्ड दे, अच्छी दे, ताकि वो अच्छा लाइफ जी सके, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सके. दिस इज कॉल्ड remuneration of employee. Now next is centralization and decentralization. Centralization. There should be proper balance between centralization and decentralization. Centralization, it means कि
अपर लेवल मैनेजमेंट के पास ऐसा पावर होता है जो किसी को नहीं देता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, और डिसेंट्रलाइजेशन जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वली सबको पावर देता है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज scalar chain, chain of authority and communication that runs from top to bottom. ये टॉप टू बॉटम करता है. अगर इसको समझे तो जैसे जैसे लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल मैनेजमेंट होता है. तो अगर कोई इंफॉर्मेशन उसको इन्फॉर्म करना है तो पहले वो लोअर लेवल को करेगा, फिर मिडिल, फिर अपर लेवल. दिस इज कॉल्ड स्केलर चैन. एक प्रॉपर सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को देना. एंड ऑर्डर, there should be a place for everything and everyone. People and material must be in a suitable place at appropriate time for maximum efficiency. Means order यहाँ पे ये नहीं कहता कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं. इसका मतलब है कि प्रॉपरली अरेंज, ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज होना चाहिए सामान, जैसे मटेरियल और मैन, ताकि उसको ढूंढने में इजीली हो, आसानी हो और वो इजीली मिल जाए. नाउ नेक्स्ट इज equity. There should be not be any discrimination among the employee on the basis of religions, language, gender, caste. ये सब के बेसिस पे ये भेदभाव नहीं करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. इक्वली सबको इक्वली समझना चाहिए और इक्विटी बना करके रखना चाहिए. इससे मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप भी अच्छा रहता है, बेटर परफॉर्मेंस भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है और एम्प्लॉय भी काम अच्छे से करते हैं. दिस इज कॉल्ड इक्विटी. नाउ नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. जब एम्प्लॉय आते